What's up everyone, Praful here and welcome to another episode of the 915 Daily. Today is 30th September and today is the quadruple witching day. मतलब निफ्टी की मंथली, क्वार्टरली and half yearly expiry था आज. Historically speaking, these quadruple witching days tend to be extremely volatile. आज expiry भी काफ़ी volatile था but not to the extent that one would imagine. Again, today Nifty closed in red, marginal red था but this is the 8th consecutive red candle on Nifty. Generally, market participants tend to get stuck in this gambler's fallacy और कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा and every now and then the market punishes such participants and the markets have closed almost near the day's low. And it's gonna be very interesting because कल से एक fresh series चालू होने वाला है and it's very interesting to see whether the market's gonna form a base and we start heading towards 25,000 और यहाँ से इस consolidation को break करके we start heading towards 24,500 and 24,000 levels. And मेरे लिए आज expiry कैसा था? मेरे लिए it was an okayish expiry. Of course the markets behaved exactly like I planned, but just because of my premature entry, I got stuck in the early morning trades because of which the entire day kind of went into waste. I closed in green, but the amount was not to my liking. Anyway, we're gonna discuss everything on the terminal, so let's get to the terminal. Alright, as usual, let's start with the candlestick analysis. अगर हम daily time frame पे जाएंगे, so you can notice that this is the 8th consecutive red candle on Nifty. And of course, we are reaching this floor level. तो थोड़े दिन पहले हम इस सीलिंग लेवल को तोड़ के ऊपर जाने वाले थे बट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स देयर हैज़ बीन कांस्टेंट सेलिंग एंड नाउ वी आर अबाउट टू अप्रोच दिस फ्लोर लेवल विच इज़ समवेयर अराउंड 24,400 लेवल्स. एंड अगर इंट्राडे की बात करें तो वी हैड प्लान्ड फॉर एग्जैक्ट थिंग लाइक वी हैड प्लान फॉर दिस एग्जैक्ट सिनेरियो कि मैंने कल बताया था कि आई वुड नॉट बी टू इंटरेस्टेड टू टेक डायरेक्शनल ट्रेड, मतलब एक ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता जब तक ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन 12 बजे के बाद आए. सो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ वी सॉ अ ब्रेकडाउन एंड मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि अगर 12 बजे से पहले अगर कोई ब्रेकडाउन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम बैक इन टू दिस जोन. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस मूव टू कंटिन्यू अप अंटिल दिस लेवल. मैं सोच रहा था कि पहले यहाँ पे पुट राइटर्स को पूरा फंसा दिए एंड उसके बाद कॉल राइटर्स को भी बुरी तरीके से फंसाए एंड उसके बाद आके रेंज में पड़े. बट ऑफकोर्स we saw this breakdown and वहाँ से market range के अंदर आया and again towards the fag end of the expiry also we again tested this low. उसके बाद with very low premiums there was a huge amount of gamma moves. यहाँ पे in this time zone ये जो आधा एक घंटे में the premiums almost tripled every once in 10 minutes. पहले कॉल्स ट्रिपल हो गए थे, उसके बाद पुट्स ट्रिपल हो गए एंड अगेन कॉल्स ट्रिपल हो गए एंड देन अगेन पुट्स ट्रिपल हो गए. तो एनीबडी हु वाज ट्रेडिंग द फैग एंड ऑफ द एक्सपायरी जो प्योर गामा ट्रेड्स होते हैं उनका काफ़ी मुश्किल रहा होगा आज के लिए. So I definitely planned for this scenario, but with this first candle, I kind of thought that okay, the first entry would be first पहले call writers को फंसाएगा, तो I made some of the put spreads. And put spreads and those put spread kind of took a beating and यहाँ पे I kind of got out almost at the peak. मैं weak out हो गया. उसके बाद the mark to market almost went all the way till 0.2, 0.3 negative पे चला गया था and उसके बाद the entire day I was kind of firefighting my positions only to end the day in a minor green, probably 0.15 या 0.2 के आसपास green में close हुआ. But that was not to my liking. Of course today's जब मार्केट एग्जैक्टली आपके एनालिसिस के हिसाब से प्ले आउट होता है एंड स्टिल यू कांट still you're not able to capitalize, then that feeling is not a good feeling for a trader. तो अगर वॉल्स की बात करें तो टुडे द वॉल्स ओपनड एट 100. कल 100 रुपीज़ पे ही क्लोज हुआ था, कल 100 रुपीज़ पे क्लोज हुआ था एंड टुडे ऑल्सो द स्ट्रैडल ओपनड एग्जैक्टली एट 100. यहाँ पे 100 पे क्लोज हुआ था एंड 100 पे ही ओपन हुआ एंड देर वॉज अ बिट ऑफ अ चॉपिंग इन द फर्स्ट 15-20 मिनट्स बिकॉज जो फॉल आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे द वॉल्स हेल्ड. बट उसके बाद it was pure delta move and the walls kept on falling, the straddle kept on decaying. Of course एक बीच में एक माइनर सा स्पाइक आया था जहाँ पे straddle 50 रुपीज़ से लेके 65 तक straddle पहुँच गया था but it was very momentary and within like 5 or 6 minutes that spike was also kind of consumed. ये सारे जो spikes आ रहे हैं these spikes are getting faded very fast and जेन स्ट्रीट के ज़माने में जब वो स्पाइक आता तो वहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा होल्ड करता था, वैसे सिनेरियो हमको अभी आजकल देखने को नहीं मिल रहा है. अगर कल की बात करें तो टुमारो इज़
सेंसेक्स का एक्सपायरी, बिकॉज थर्सडे इज़ अ हॉलीडे, October 2 है, तो टुमारो इज सेंसेक्स एक्सपायरी एंड सेंसेक्स के वॉल्स आर अगेन ट्रेडिंग एट 439. तो कल most probably, unless we open a big gap down, the walls will somewhere open around 410 or 400 levels. And again, such low premiums are not a good opportunity for the option traders, because market थोड़ा भी मतलब चॉप कर देगा ना 200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर, you wouldn't be able to hold on to your positions and you would delta hedge at that point, and again the market comes back into the range, again you will delta hedge there, and most of the wall का जो या टीटा डीके का जो पैसा मिलता है वो पैसा सिस्टम में अब्जॉर्ब हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा मैनेजमेंट कॉस्ट. डेल्टा कॉस्ट में आपका सारा टीटा डीके चला जाता है. तो अगेन टुमारो माई गोल इज टू ट्रेड द मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड्स, एंड अगर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है पोस्ट 12 o'clock, देन आई विल बी ट्रेडिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम. तो कैंडल स्टिक पे अगर बात करेंगे, कैंडल स्टिक का अगर बात करेंगे, अगर कैंडल स्टिक की बात करेंगे सेंसेक्स की, सो टुमारो अगेन 3 सिनेरियो है. सो इफ अट ऑल वी ओपन विद इन दिस रेंज, देन आई विल बी टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन ट्रेड्स बिटवीन दीज लेवल्स. तो दोपहर तक मेरा मीन रिवर्शन ट्रेड्स प्लान होंगे, बट अगर 12:30 और 1 o'clock के आसपास इफ वी गेट अ गुड ब्रेकआउट कैंडल विथ सम गुड वॉल्यूम्स, देन आई विल प्लान फॉर अ गुड डायरेक्शनल ट्रेड, इधर अपसाइड और ऑन द डाउन साइड. अभी मेरे पास कोई बायस नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि ओ मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा. आई विल वेट फॉर द मार्केट्स, बिकॉज यहाँ पे देर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी दैट हैज़ हैपेंड. तो अगर मार्केट यहाँ पे ओपन करेगा तो देन दिस विल एक्ट एज द फ्लोर, एंड अगर मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स में ही, अगर फर्स्ट 5 और फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर इस लो को तोड़ देगा विद गुड वॉल्यूम्स, देन वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ कंटिन्यूएशन, एक ऐसे पुल बैक दे के इस पॉइंट से फिर से मार्केट नीचे जा सकता है. सो आई एम नॉट प्लानिंग फॉर गुड गैप अप्स. अगर बड़ा गैप अप होता है तो अगेन माई गो टू ट्रेड विल बी कॉल रेशियो, बिकॉज टुमारो इज 1 DT एंड ऑल्सो वी आर इन अ डाउन ट्रेंडिंग मार्केट एंड मोस्ट ऑफ द गैप डाउन्स आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी सोल्ड इन टू. ऑलराइट, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट की थोड़ा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगेन टुमारोज open interest is kind of immaterial, because Sensex की बात करें तो a lot of straddles have been built around 8500 levels and 8400 levels. तो इसके आसपास ही मतलब maximum जो congestion है वहाँ पे है, and these people are getting around 450 points risk to hold on to those straddles. The moment markets start moving something above 450 points, there will be immediate shift of this open interest. Immediately puts unwind होंगे and puts थोड़ा lower strike पे shift हो जाएंगे, calls unwind होंगे, calls लोअर स्ट्राइक्स पे आ जाएंगे, एंड यहाँ पे कंटिन्यूसली चर्न होता रहेगा. तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे आई एम नॉट टू फोकस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, स्पेशली 1 DT एंड 0 DTs पे. बट या प्राइस एक्शन के बेसिस पे माई प्लान इज, इफ एट ऑल वी ओपन इन बिटवीन द रेंज, आई विल हैव सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड टिल आफ्टरनून, एंड पोस्ट नून अगर एक डायरेक्शन मिल जाता है देन प्रॉबली आई विल ट्रेड द ट्रेंड. बट अगर ओपनिंग ही यहाँ पे फ्लैट ओपन को खुल के यहाँ पे पहले 15 मिनट के नीचे ये ब्रेक हो जाता है, देन आई विल वेट फॉर अ पुल बैक टू सेल द मार्केट्स. सो दैट वुड बी माई प्लान गाइस, एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.